जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल to get continuous my all the videos. In previous videos we have completed our chapter 1 number system. Today we are going to start our new chapter 2 polynomials. First we study about introduction of this chapter. What is polynomial? Polynomial is defined as a special type of algebraic expression is called polynomial. Specific type algebraic expression. ओके लेकिन इसको फिर भी कम्प्लीटली समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अभ्यास पर ही आप धीरे धीरे पूरे पॉलिनोमियल्स को समझ पाएंगे। अब पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको दो सिंबल का हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें वन सिंबल इज वेरिएबल एंड अनदर सिंबल इज कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन होल्ड एनी रियल वैल्यू। वेरिएबल कैन होल्ड एनी रियल वैल्यू and it is expressed by symbol x, y, z, and x, y, z change their value with respect to time, with respect to condition, with respect to time, position. So it can hold any real value. In some question x is 2, in another question x is 60, in another question x is under root 3. So it is variable. And constant. Constant is denoted by the symbol it can hold a fixed value and this value is not changed with respect to time, place, position, conditions. It hold a definite value and a fixed value. It is called a constant. All integers, all whole numbers means all real numbers. All real numbers इसमें आ जाएंगे। -2, 3, 11/7, under root 3 they are constant. Pi also a constant because pi hold a fixed value. This value does not change with respect to time, place and position. This is constant. Friends, product of a variable and a constant is form a term. Product of variable and constant. For example, 3 is a constant, x is variable, and product of a constant and variable it is called term. This is term. We can use more than one variable, same or different. For example, 3x we can another x and another x, then it is 3x cube. It is also a term. 3 into x into y into z, it is also a term. Means product of a constant and variables form a term. This is a term, this is a term, this is a term. When we use a constant with a variable in multiple form, in this situation this constant is called coefficient. Coefficient of x cube. 3 is coefficient of x cube. 3 is coefficient of x cube. But when 3 is alone, then it is called constant. But when we use 3 in product with a variable, then it is called coefficient. Coefficient of x. 3 is coefficient of x. 3 is coefficient of x cube. So this is term and this is a term. The addition or subtraction of this term form a polynomial. Addition or subtraction of this term form a polynomial. For example, 3x cube plus 2x plus 3. This is one term, this is second term, this is third term. Addition and subtraction of this term form a polynomial. Only one term also called a polynomial.
only one constant also called a polynomial. It is also a polynomial. It is also a polynomial. It is also a polynomial. अब किसी भी टर्म को पॉलिनोमियल होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशंस को ध्यान रखिए, और वो नेसेसरी कंडीशन ये है कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की टर्म पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, या तो इंटीजर नहीं है या फिर पॉजिटिव नहीं है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x रेज़ टू द पावर -3, यहाँ वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट को ध्यान, केवल ओनली फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसलिए फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1/2. 1/2 is not an integer, so it is not a polynomial. Under root x, x की पावर 1/2, it is not integer. When we use 3x raised to the power -2 plus 3x square plus 1, नेगेटिव पावर, इसलिए वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। तो हमने वेरिएबल को पढ़ा, कांस्टेंट को पढ़ा। कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट टर्म फॉर्म करता है 3x। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड 3x³। दिस इज अ टर्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ टर्म्स फॉर्म अ पॉलिनोमियल। -7x² + 11, इट इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल। लेकिन इसके साथ एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स है उसकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। इसके बाद ये जो 3 है, अगर सिंगल जैसे 1, ये इसके साथ कोई वेरिएबल्स यूज़ नहीं किया गया तो हम इसको कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल के साथ मल्टीपल फॉर्म में, तो इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x³। ओके, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। एक सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकती है, एक अकेला कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकता है। ओनली 3 इट इज़ अ पॉलिनोमियल। 4 -4 इट इज़ अ पॉलिनोमियल। √3 इट इज़ अ पॉलिनोमियल। कोई भी रियल नंबर सिंगल भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हमने कांस्टेंट पढ़े, वेरिएबल्स पढ़ा, टर्म्स पढ़े, कोफिशिएंट पढ़ा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3, इट इज़ आल्सो पॉलिनोमियल। इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हेन वी यूज इन अ पॉलिनोमियल ओनली कांस्टेंट, देयर इज नो वेरिएबल, देन वी कैन से इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। It is called constant polynomial. If we use only 0 also a polynomial. It is called zero polynomial. We can say it is also constant polynomial. It is called also zero polynomial. So it is constant polynomial. And when we use any variable, then it is called a polynomial. पॉलिनोमियल के बाद इनमें हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपोनेंट का यूज़ किया गया है। 3x³ 3x² + 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 3x³ 3x² + 1, हाईएस्ट power of variable is 3. So degree of this polynomial is called 3. Degree of this polynomial is 0 because there is no variable. So we can write it 3x raised to the power 0, and it is highest
power. So degree of constant polynomial is 0. This if it is a polynomial, then x raised to the power 1, x raised to the power 1. So degree of this polynomial is called 1. So this is new terminology, it is called degree. Types of polynomial. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को दो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डिग्री. ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पर सबसे पहला जो पॉलिनोमियल आता है वो है मोनोमियल. Means if a polynomial having only one term, if a polynomial having only one term, डिग्री कुछ भी उससे कोई लेना देना, टर्म वन होनी चाहिए. If a polynomial having one term, then it is called monomial. For example, 2x raised to the power 3, only one term, so it is called monomial. Minus 3x, having only one term, it is monomial. 11 by 2 x raised to the power 5, only one term, it is monomial. Second, binomial. If a polynomial having two terms, यहाँ टर्म्स के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. 3x स्क्वायर प्लस 2x, इट इज बाइनोमियल. 2x minus 5, it is binomial. Two terms, one terms and two terms, one terms and two terms. 7x cube minus 7, only two terms, so it is called binomial. डिग्री कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं. थर्ड, ट्राइनोमियल. If a polynomial having three terms, if a polynomial having three terms, x cube plus 2x square plus x, it is trinomial. 2x square minus 7x plus 5, three terms, then it is called trinomial. So on the behalf of number of term, term के हिसाब से यहाँ पर थ्री क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री, डिग्री के बिहाफ पर, इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, टर्म नहीं देखना है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, बट डिग्री 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. टू एक्स हैविंग 1 डिग्री, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. 7x प्लस 5, डिग्री 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है, डिग्री 1, so it is linear polynomial. Second, quadratic polynomial. If a polynomial having degree 2, it is quadratic. Degree 2, degree 2, then it is quadratic polynomial. 3x square, degree 2, it is quadratic polynomial. 2x square plus 7x minus 9, degree 2, it is quadratic polynomial. Third, cubic polynomial. A polynomial having degree 3, then it is called cubic polynomial. 3x cube, it is cubic polynomial. 3x cube plus 7, it is cubic polynomial. 5x cube plus 7x square minus 9x minus 11 by 7, cubic polynomial. And polynomial is denoted by px, such type, px, polynomial of x. And when polynomial of y square plus 7xy plus 3, it is also a polynomial, but it is written as py. सो पॉलिनोमियल को जो लिखा है तब पी वाई, वाई मीन्स वेरिएबल वाई यूज़ किया है, पी एक्स मीन्स यूज यहाँ पर वेरिएबल
एक से ज़्यादा ही वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपने 3 वेरिएबल्स यूज़ किया है तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो गया। इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था 2 इट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 3 इट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल नहीं हो तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहें या जीरो पॉलिनोमियल कहें, इसकी डिग्री हमेशा 0 मानी जाती है। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल की पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो हमने कांस्टेंट पढ़े, वेरिएबल पढ़े, कोफिशिएंट को भी पढ़ा। कोफिशिएंट को पढ़ने के बाद हमने टर्म्स को पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इट इज फॉर्म ऑफ टर्म, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने पढ़ा। डिग्री को पढ़ा, डिग्री को पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, और फिर हमने पॉलिनोमियल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को पढ़ा कि पॉलिनोमियल तभी, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब उसकी वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो फिर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसीलिए जब पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया तो स्पेसिफिक टाइप्स के जो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जो स्पेसिफिक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और पॉलिनोमियल को px, py, pt से, अगर t तब लिखेंगे जब t स्क्वायर t के फॉर्म में हो, है ना, इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है, इसके बिहाफ पर इजीली आप एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसलिए एक्सरसाइज 2.1 इस वीडियो को देख करके आपको सॉल्व करना है। तो इजीली आप इस वीडियो को देख करके एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे नए मटेरियल के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।